Hello, friends. Today we are going to learn with a very humorous poem named Have You Ever Seen? The poet name is not revealed in this poem, it is the anonymous poem. It is the anonymous poems. Before starting this poem, we discuss about his or her poems. Why we use here? Because we don't know about the poet. He may be or she may be poet or poetess. So that's why we are going to discuss, and he used in this poem various sentence of puns, various sentence of homographs. You know, puns means, huh? Yes. Before it, we discuss the figure of speech puns, and puns means when words with the same spelling or pronunciations are used in such a way that they convey more than one meanings. The figure of speech involved is called pun. पन इज ए प्ले अपॉन वर्ड्स. ये पन क्या है? एक शब्दों का खेल है. वी कैन से वी कैन से एनी आइडिया इन डिफरेंट वे और डिफरेंट मैनर. हमें एक बोलना होता है और दूसरा दूसरा अर्थ पकड़ता है. ये क्या होता है? पन होता है. द पोएट आल्सो यूज होमोग्राफ्स. यू नोज वेरी वेल अबाउट द होमोग्राफ्स. होमोग्राफ्स मीन्स, यस, words that have the same spelling but deeper meaning when used in different contexts are called homographs. Here, let's move ahead to explain. Before it, let's move ahead the reading of the poems. Okay, there are given 3 stanzas of the poem. We discuss one by one stanza. Okay. Have you ever seen a seat on a riverbed or a single hair from a hammer's head? Let's discuss. Read the points. Have you ever seen a seat on a riverbed or a single hair from a hammer's head? Has the foot of a mountains any toes? And is there a pair of garden hose? Yes, this is the first stanza of this poem. Here, the poet says that just he is speaking. He is speaking about the river beds, and there are given beds and beds. Yes, yes. Bed means a piece of furniture. One meaning is there. Bed means, bed means I use here bed. Bed use here a piece of furniture where we can use for taking a rest. And another meaning of bed means bottom of rivers. Okay, so here in the first lines the poet explains, have you ever seen a seat on a river bed? रिवर बेड पर जो नदी का जो बॉटम होता है, नदी का जो रिवर बेड होता है, मतलब जहाँ पानी रहता है ना, वो उसके ऊपर कभी आपने सीट चादर देखी क्या? बेड शीट देखी क्या? कभी नहीं देखी. मीन्स he asked the questions, but he doesn't want to your answers. He doesn't expect your answer. He avoided. Just he want to explains why the English language used in differently. Means he want to play with the words. He use a different kinds of words according to our will. हम जैसे सोचते हैं वैसे हम वर्ड्स का मीनिंग कभी कभार निकालते हैं. तो ये इन द फर्स्ट लाइन ही सेज दैट हैव यू एवर सीन ए सीट ऑन ए रिवर बेड. क्या आपने नदी के बेड पर, नदी का जो बॉटम होता है, रिवर बेड होता है, उस पर कभी आपने चादर देखी क्या? नहीं देखी ना. देन ही से इन द सेकंड लाइन, और ए सिंगल हेयर फ्रॉम ए हैमर से.
next word is here heads. Next word is here head. Head means here head means head of a person, means this is the parts of body, this is the parts of body. And the another meaning of this हैमर्स हेड्स मीन्स टॉप पार्ट ऑफ हैमर, जो हैमर्स होता है हथौड़ा होता है, हथौड़ा का जो ऊपरी पार्ट होता है जिससे हम नेल यानी नेल या कीली को हम क्या कर सकते हैं किसी की दीवार पर या किसी के वुडन पार्ट पर हम लगा सकते हैं. सो हैमर सेड वो क्या कहते हैं, और ए सिंगल हेयर फ्रॉम ए हैमर सेड व्हेन वी यूज द हेड्स हैमर सेड. तो हैमर सेड जब उच्चारते हैं तो हैमर्स के ऊपर एनी हेयर रहता है क्या, कुछ भी बाल होते हैं क्या, नहीं. हमारे व्हेन वी यूज ह्यूमन पार्ट ह्यूमन बॉडी हेड ऑफ ए पर्सन्स हेड, हेड के बारे में हम सोचते तो है, हेड जब हमारे सामने आता है तो उसके ऊपर बाल होते हैं, है ना, बाल होते हैं. तो लेकिन हैमर्स के ऊपर एनी हेयर रहते क्या, नहीं रहते. सो ही वांट टू मेक अ फन्स ऑफ दिस line. In the third line, has the foot of a mountain in its toes? Yes. हम दूर से देखते हैं when we observe the mountains and there is under the mountains or beside the mountain there flowing the rivers. Beside the mountain there flowing a rivers, and in the foot beside the foot of mountain some animals are मूविंग हियर एंड देयर्स बट इट हैज़ नॉट टू, है ना. माउंटेन को क्या होते फूट होते हैं, लेकिन उसको टोज हमने देखे क्या, हम बोलते हैं कि माउंटेनच्या पायथ्याखाली माउंटेनच्या माउंटेन के मतलब फूट ऑफ माउंटेन मीन्स माउंटेन के बेस पर हम देखते हैं, ऐसे बोलते हैं. लेकिन उसको टो रहते क्या, कभी नहीं रहते. उनको माउंटेन को फूट है लेकिन टो रहते क्या, नहीं रहते. एंड इज देयर ए पेयर ऑफ ए गार्डन होज, और एंड देयर इज ए पेयर ऑफ गार्डन होज. अनदर होमोग्राफ वर्ड्स इज हियर होज, अनदर वर्ड इज होज हियर. इन दिस लाइन द पोएट सेज दैट एंड इज देयर ए पेयर ऑफ ए गार्डन होज. अगर गार्डन होज मीन्स ये ट्यूब होता है, पाइप. गार्डन में गार्डन को पेड़ को या प्लांट्स को वाटरिंग करने के लिए क्या होते हैं, होज रहता है, वो पाइप रहता है. लेकिन पाइप गार्डन होज बोलते हैं, जिससे हम पानी देते हैं उसको गार्डन होज कहते हैं. लेकिन एक्चुअली मीनिंग ऑफ दिस वर्ड होज मीन्स ए पेयर ऑफ सॉक्स, ए पेयर ऑफ सॉक्स. तो दो ट्यूब से दो गार्डन होज से हम वाटरिंग कर सकते क्या, पंपिंग वाटरिंग द गार्डन नहीं कर सकते. सो इन दिस लाइन इन द फर्स्ट stanza the poet use the puns and homographs words. Let me explain once again. The poet asks if anyone's, वो किसी को भी पूछते हैं, हम सबको पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, इफ एनीवन हैज सीन ए सीट ऑन ए रिवर बेड, क्या किसी ने अभी रिवर के बेड पर चादर देखी है. दूसरे इसमें बोलते हैं सिंगल हेयर फ्रॉम द हेड ऑफ ए हैमर्स, क्या कभी हैमर जो रहता है उसके ऊपर उसके जो टॉप पार्ट ऑफ द हैमर्स उसके ऊपर एक भी बाल देखा है, नहीं देखा. देन ही इन द थर्ड लाइन आस्क इफ द फुट ऑफ ए माउंटेन हैज एनी टोज और इफ देयर इज ए पेयर ऑफ ए गार्डन होज. क्या देखते हैं कि माउंटेन का जो बेस होता है, माउंटेन का जो फूट होता है, तो उसको कभी टोज देखे हैं हमने, नहीं देखे. एंड इफ देयर इज ए पेयर ऑफ गार्डन होज, क्या गार्डन में पानी देते उसको ये होते हैं, होज होते हैं, नहीं होते. दिस इज द first stanza. Now let's move toward the second stanza of this poem. Does the needle ever wink its eye? Why doesn't the wings of a building fly? Can you tickle the ribs of a parcel? Can you tickle the ribs of a parasol or open the trunk of a tree at all? Look here what he says in this line. He wonders if the needles ever wink its eye and why the wings of a building fly. The first line says look here wink. Wink मतलब क्या है, yes here is the wink and eye. Look here eye is the wink. It's needle. आपने सभी ने needle देखी है, yes
सुई, वी कैन से नीडल्स। नीडल्स को क्या रहते हैं, जिससे हम जो थ्रीड डालते हैं ना, जो थ्रीड डालते हैं उससे क्या होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नीडल्स विंग बोलते हैं। तो क्या करते हैं, उसकी आइज़ है, नीडल्स की आइज़ कभी अपनी आँख ऐसी फड़फड़ाती है, मतलब आँख वो मारती है, नहीं मारती। देखो नीडल्स को आँख रहती है, लेकिन वो ब्लिंकिंग करने के लिए या आँख झपकने के लिए उसकी आइज़ रहती है क्या नीडल्स की? नहीं रहती। कि आप सोचो ये कॉमेडी कर रहे हैं, मतलब ही वांट टू मेक अ ह्यूमरस, ही वांट टू मेक फन्स थ्रू दिस पोएम। देन व्हाई डजंट द विंग्स ऑफ ए बिल्डिंग्स फ्लाई? ओके, बिल्डिंग्स फ्लाई, हम देखते हैं ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स, टावर्स देखते हैं, तो बिल्डिंग्स में क्या होते हैं, विंग्स होते हैं। विंग्स मीन्स यस, फ्लोर्स होते हैं, हाँ, 1 floor 2 floors and there are many floors, so that's why there were given the names, first wing, A wing, B wing, C wings, like this way there were given the separate name. So here once again he asked the questions, why doesn't the wings of a building fly? yes, building को wings है, लेकिन वो उड़ क्यों नहीं सकती? हाँ, हम बोलते हैं ना, मैं बिल्डिंग के पहले विंग पर हूँ, मैं बिल्डिंग के पहले विंग पर हूँ। सो देन व्हाई डजंट द विंग्स ऑफ ए बिल्डिंग फ्लाई? तो बिल्डिंग के विंग हुए फिर भी वो क्यों नहीं उड़ सकती? इन द थर्ड लाइन, कैन यू टिकल द रिब्स ऑफ ए पायरोसोल? कैन यू टिकल? टिकल मीन्स क्या होता है? टिकल मीन्स गुदगुदी होना, है ना? टिकल मीन्स हाँ, ये जो हमारे रीड्स है, गुदगुदी होना, टिकल्स द रिब्स। रिब ऑफ मीन्स यस, ये हमारी जो पसलियाँ हैं, ये चेस्ट की जो पसलियाँ हैं, ओ एंड ऑफ ए पैरासोल। देखो पैरासोल मीन्स अम्ब्रेला। अम्ब्रेला के जो अंदर की जो रॉड्स रहते हैं ना, स्टील के रॉड्स रहते हैं, उससे क्या उसको छतरी के अम्ब्रेला के क्लॉथ को एक आधार मिलता है, उससे के कारण वो ओपन होती है और क्लोज होती है। सो यस, कैन यू टिकल द रिब्स ऑफ इट? जैसे कि हमें टिकल्स मीन्स गुदगुदी होना, रिब्स मीन्स हमारी पसलियाँ, है ना? रिब ऑफ ए पैरासोल, छतरी को पसलियों को, जैसे अगर हम हमारे पसलियों को टिकलिंग्स करेंगे तो हमें गुदगुदी होंगी, वी बिकम्स लॉफ। बट पैरासोल, पैरासोल और छाते के जो रिब्स है उसको हमने गुदगुदी की, टिकल्स किया, तो क्या वो उसे गुदगुदी होगी? नहीं ना। देन व्हाई डोंट वी यूज रिब्स ऑफ ए पैरासोल? ही मेक्स फन्स। अनदर नेक्स्ट सेंटेंस, और ओपन द ट्रंक ऑफ ए ट्रीज एट ऑल। देखो क्या बोलते हैं, वी कैन से, आप समझ में आते होंगे। हाँ देखो, ट्रंक, ट्रंक, हियर इज द वर्ड ट्रंक। ट्रंक मीन्स क्या होता है? यस, द मेन पार्ट ऑफ द ट्रीज, है ना? मेन पार्ट ऑफ द ट्री, इट इज द ट्रंक। एंड अनदर मीनिंग ऑफ दिस ट्रंक, ट्रंक मीन यस, ट्रंक मीन्स a instrument or thing, we can use it for store, we can use it for store anything। हम वहाँ कुछ भी रख सकते हैं, ऐसी ट्रंक है, पेटी है ना? तो पेटी मीन्स एंड ट्रंक मीन्स यू नोज वेरी वेल। और ओपन द ट्रंक्स ऑफ ए ट्रीज एट ऑल। देखो अगर हम ट्री को, अगर ट्री का जो ट्रंक है वो ऐसी ट्रंक के जैसी ऐसी खुल सकते हैं कि जैसे कि ट्रंक मीन्स सूटकेस, वी कैन से दैट ट्रंक मीन्स ट्रंक, वी कैन से दैट सूटकेस। जैसे कि सूटकेस को या ट्रंक को हम ऐसे खोलते हैं और एनीथिंग्स वी कैन पुट ही इनसाइड इट ट्रंक्स। सो ऐसे कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। इन द last stanza, are the teeth of a rake ever going to bite? Have the hands of a cloak any left or right? Can your garden plot be deep and dark? And what is the sound of the beach bark? The last stanza of this poem, the last stanza of this poem, are the teeth of a rake ever going to bite? Okay, here rake means क्या होता है? Yes, rake means the farmer use this instrument for collecting the crops, or sometimes we use this rake in our garden for collecting the soils and raw materials. Are the teeth of a rake ever going to bite? देखो
क्या कभी टीथ है, रेक के जो टीथ है वो कभी चबाने चब मतलब उससे चबाना होता है क्या? वी कैन यूज द टीथ ऑफ रेक फॉर बाइटिंग एनी फ्रूट्स? नो। लेकिन उससे हम क्या कहते हैं? रेक बाइट्स कहते हैं, दातार के दांत कहते हैं ना। तो लेकिन उसका इस्तेमाल हम चबाने के लिए नहीं कर सकते, है ना। सो हियर नेक्स्ट लाइन, हैव द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक एनी लेफ्ट और राइट? जो क्लॉक है या वॉच है उनके कभी लेफ्ट और राइट हैंड्स रहते हैं क्या? नहीं। हैव द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक एनी लेफ्ट और राइट्स? लेकिन वी कैन यूज, यस, दिस इज द हैंड, clock hands, minute hands, and hour hands. We can say that also hands, but we don't say that this is the right hand, this is the left hand. It shows and hours hands and minute hand. There are three hands and second hand also, but we cannot say left hands and right hands. In the third line, कैन द गार्डन प्लॉट बी डीप एंड डार्क? यस। गार्डन का जो प्लॉट होता है, गार्डन का जो प्लॉट होता है, जगह होती है, वो क्या होती है? डीप एंड डार्क होती है। लेकिन वी कैन नॉट यूज प्लॉट मीन्स एरिया, प्लॉट मीन्स एरिया, है ना। प्लॉट मीन्स एरिया एंड प्लॉट मीन्स अनदर मीनिंग ऑफ दिस प्लॉट मीन्स एरिया एंड प्लॉट मीन्स, यस, प्लॉट मीन्स theme. Plot means the writers or novel is the use for writing the story. Plot, okay. Plot, here plot means plot of story होता है, मतलब ये यूज करते हैं. So once again, कैन द गार्डन प्लॉट भी डीप एंड डार्क? गार्डन का कभी नर्वस, कभी अंधेरापन, कभी इविल एंड गुड्स, ऐसा प्लॉट रहता है क्या? नहीं रहता. सो इन द लास्ट लाइन, एंड व्हाट इज द साउंड ऑफ द बीज बार्क? एंड क्या बीज बार्क मीन्स क्या होता है? बार्क साउंड ऑफ डॉग और हार्ड कवर ऑफ ट्री. जो देखो, बीज बार्क, बीज मीन्स ट्री, ट्री का जो है ट्री, बीज मीन्स क्या होता है? ट्री. ट्री जब उसका जो आवाज़ आता है तो क्या कुत्ते की भौंकने जैसी आती है क्या? नहीं. जैसे कि ट्रीज़ है, ट्रीज़ का जो अपर पार्ट है, अपर पार्ट वो जो अब कट जाता है तो क्या आता है? उसका कुत्ते जैसा भौंकना आवाज़ आता है क्या? नहीं आता. देन व्हाई वी यूज दिस वर्ड्स? सो यू वांट टू मेक fun through this poem. Once again, which are the words the poet or poetess use as a homographs? Bed. The first word is bed. Bed means a piece of furniture, and another meaning of top, bottom of rivers. Head of a person's or body parts, and another meaning of top part of hammer. Then foot. Third word is foot. Foot means of a human body, and another meaning the lowest part of माउंटेन. जो माउंटेन का जो निचला भाग होता है, बेस होता है, उसे हम फुट ऑफ माउंटेन कहते हैं. ओके. देन होज. द नेक्स्ट वर्ड इज होज. होज मीन्स फ्लेक्सिबल पाइप. वी कैन यूज इट इन आवर गार्डन. एंड अनदर मीनिंग पेयर ऑफ सॉक्स. दिस इज द 4 words we can use in our poem as a homographs word. In the second stanza, eye means part of human body. This is the eye. Okay, eye. And another meaning, eye means needle's eye, needle's hole. जो needle रहती है, needle का जो hole रहता है उससे हम thread यूज कर सकते हैं. This is the eye, needle's eye. And wings. Wings means part of bird's body, है ना, जो which can, the birds which is used for flying. This is the wings. And wing is part of building. Wing is part of buildings. Ribs. Next word is ribs. Ribs, curved bones articulated in pairs to the spine. जो हमारे जो पसलियाँ होती है शरीर के चेस्ट में, जो
और ये, तो ये क्या है, कर्व बोन्स आर्टिकुलेटेड इन पेयर्स टू द स्पाइन। एंड अनदर मीनिंग ऑफ रिट्स, कर्व्स ऑफ अम्ब्रेला, कर्व्स जो अम्ब्रेला रहती है ऐसी, उसमें जो अंदर में जो रहते हैं वो रिब्स है, रिब्स ऑफ पैरासोल। एंड नेक्स्ट, trunk means tree trunk, जो the main part of the tree, it is the trunk, and another part means boxes which can use our things for the last stanza. We discuss about the teeth. Teeth means क्या, teeth of रेक, रेक में जो दतार के दांत होते हैं उसे टीथ कहते हैं। एंड ह्यूमन टीथ आल्सो, दिस इज द टीथ, टीथ टीथ है ना, टीथ ऑफ रेक एंड ह्यूमन टीथ। हैंड्स, hands also use, hands of human body and hands of clock. Plot, plot used for small area of ground and plot of story. Then bark, bark sound of dog and hard cover of tree. Okay, I hope my dear friends you understood this poem. Thank you.